Good morning, class. Myself Tanvi Agrawal, and I am your new biology teacher. So today we will discuss about the chapter 5, that is fundamental unit of life, and in which the cell. So the cell is a basic unit of life. So if the question is that the what is cell, the cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is called basic unit of life. There are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. There are two type of organisms, unicellular and multicellular organisms. Cell is the basic unit of life and cell is called the basic structural and functional unit of life. Cell are made up of cell membrane, cell wall, cell nucleus and plasma membrane or cytoplasm. There are many types of organelles that are present inside the cell and called cell organelles. These are many like chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus and chromosome. So today we will discuss about all this. So before we go in the deep, first of all we will come to know who discovered cell. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in a thin slice of cork with his crude microscope. He developed his microscope and it was a primitive microscope. He observed as honeycomb-like structure and named them as cellulae or cells. His discovery indicated for the first time that living organism consist of a number of small structure or unit. So, who discovered the cell? In 1665, Robert Hooke discovered the cells. Now, to know the history of the cell, how the cell was discovered. In 1665, as you can see in the picture also, this is he is the Robert Hooke who discovered the cell in 1665. After that, Leeuwenhoek studied living cell for the first time. In 1831, Robert Brown. He is the this is the picture of Robert Brown. Robert Brown discovered nucleus. In 1838 and 39, M.J. Schleiden and Schwann. These are the pictures of the Schleiden and Schwann formulated cell theory. After that, in 1855, Rudolf Virchow stated omnis cellula is cellula. He gave the terms omnis cellula is cellula means new cells arise from the pre-existing cells, and he expanded the cell theory after the Schleiden and Schwann. I have already discussed all this in the class and I am doing the revision of that. So now comes to what are living organisms made up of. Living organisms किसके बने हुए होते हैं? Just a building is made up of bricks. The body of the living organism made up of cells. जैसे कि बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स की बनी हुई होती है, उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए होते हैं? वो सेल्स की बनी हुई होती है, सेल की. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं? सेल है. सेल बेसिंग ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. जैसे एग्जांपल है इसका क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम. दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल परफॉर्म द सिमिलर बेसिक फंक्शन फॉर देयर सर्वाइवल. ये चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो कोई भी ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो सेल का बेसिक फंक्शन है वो सब में एक सा ही होता है. So this is all about the unicellular and multicellular organism. As the building is made up of bricks and our body is also made up of cells. So that's why the cell is called basic structural and functional unit of life. On the basis of cells, number of cells, there are two types of cell. First is unicellular organism, unicellular. Second is multicellular. In unicellular organism only single cell is present, and in multicellular organism more than one cell is present. Okay.
So now comes on the next slide. So gadgets to study cells. What are the gadgets by which with the help of these we can study cells? Cells are too small to be seen by naked eye. So we can't see the cells because it is very minute, or they are these are microscopic. So we cannot see with the help of our eyes. So we need microscope to study them or watch them. They are studied with the help of microscope. Microscope are high resolution instrument that are used for observing fine details of very small objects. मीन्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ों को भी हम बहुत बड़े फॉर्म में देख सकते हैं. टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 100 to 1500, and electron microscope magnification range from 1 lakh to 5 lakh. You can see in the diagram also. This is the structure of compound microscope or light microscope it is called, and this microscope is available in our laboratory, so we can see it in our lab. So its resolution power is 100 to 1500, and this is the electron microscope, and it is very heavy in the weight, and it is found in the university level. So its magnification range is 1 lakh to 5 lakh. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को या सेल को ये 5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और जो लाइट माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 100 से 1500 तक बड़ा करके शो करता है किसी भी चीज़ को. क्लियर? So now comes on the next slide, gadgets, shape and size of the cell. So there are different type of cells which are of different shapes. Shape and size of the cell are vary, but all of these are ultimately determined specific function. किसी भी सेल्स का शेप और साइज़ जो होता है वो डिफ़र होता है. वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि कोई भी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस बेसिस पे ही उसका शेप या साइज़ होता है. जैसे कि सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप्स. अमीबा. अब जैसे कोई सेल्स होती है, जैसे कोई अमीबा है, वो क्या है, अपनी शेप बदलता रहता है हर समय, एक सी फिक्स शेप उसकी नहीं रहती. WBC, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप. मत मीन्स WBC और अमीबा की शेप चेंज होती रहती है, लेकिन प्लांट और एनिमल्स की फिक्स शेप होती है. स्मॉलेस्ट सेल PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा. I have discussed in the class also, and I have told PPLO. This is mycoplasma. Largest cell, ostrich egg. Longest cell, nerve cell. So these three main or important cells which we should learn about it. Smallest cell PPLO, second is largest cell ostrich egg, and the longest cell nerve cells. A micrometer or micron is 1000 of a millimeter. So these questions are also asked smallest cell, largest cell, and longest cell. So this is the scale of the life. It is not so important. So now comes upon the unicellular versus multicellular organism. I have told you already what are the unicellular and multicellular organism, in which only single cell is present, called unicellular organism. Single cell able to perform all the life process like obtaining food, respiration, excretion, growth and reproduction. मतलब सिंगल सेल में ही क्या हो जाता है, एक ही सेल में लाइफ प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है. और जो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, खाना, जो फूड है वो उसको ऑब्टेन करना, रिस्पायरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सब कुछ सिंगल सेल में ही हो जाता है. कांट बी डिवाइडेड इन 2 सेल्स, दे आर ऑल्सो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स ए सेलुलर मीन्स जिसमें कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती. वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इन 2 सेल्स. सेल्स में डिवाइड नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि जो यूनिसेलुलर है उसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम. So now comes upon the multicellular organism made up of many number of cells. Cells have a similar basic structure and function, similar basic life activities. Different type of cells and aggregated to form different tissue. Tissue form organs, and organ give rise to organ system.
ये मैंने क्लास में भी बताया था कि जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जब बहुत सारी सेल्स कंबाइंड होके क्या बनाती हैं, टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड होके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो फिर एक वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। So now cell is the basic unit of life. It perform all life function like intake of food, material excretion, metabolism, respiration, irritability etc. तो जो सेल है उसमें सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने बताया था, जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क। सेल यूजली पजेज ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। सेल में क्या होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें कि सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। उनका भी सेल में जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट इज क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल। अब कुछ जो ऑर्गन हैं और कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल हैं सेल के अंदर, वो वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ जो है जैसे कि राइबोसोम वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल प्लास्टिड करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। लिपिड सिंथेसिस और कोई कंपोनेंट करता है। इसी तरीके से हर कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब क्या है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल इज ए टिनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक में टिनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि सराउंडेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइफ के परफॉर्म करता है। अगर ये देखा जाए, ये बताया जाए कि एक टिपिकल सेल में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और टू क्रिएट सेपरेट एनवायरनमेंट। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल, और तीसरा है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है किसी भी सेल्स की, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, और उसे उसका जो फंक्शन है वो पूरे सेल को रेगुलेट करना। फिर क्या है, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म the fluid-like substance which is present inside the cell is called cytoplasm, possessing metabolic machinery। जो साइटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिक मशीनरी को पजेस करता है। सो दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? The outermost delicate elastic membranes covering of the cell that separate its content from the external environment is called plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किसी दो सेल्स के बीच में को सेपरेट करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउ एंट्री ऑफ सर्टेन सबस्टेंस रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स। केवल कुछ सबस्टेंस को ही अंदर आने देती है, ज़्यादा को नहीं आने देती। कुछ को रोकती है, कुछ को आने देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। It is made up of bilipid layer and protein are integrated in and outside। बाईलिपिड लेयर ये किसकी बनी हुई होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की। और लिपिड की क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं इसमें, और प्रोटीन की सिंगल लेयर होती है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड एट प्लेसेस टू आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन। फंक्शन क्या है इसका, शेप टू कंटेंट्स ऑफ द सेल, मशीन मैकेनिकल बैरियर्स, सेमी परमिएबल, endocytosis, recognition centers, flow of formation, osmosis, cell continuity modified to perform special function like absorption in microvilli. So these are the functions of the plasma membrane. This is the structure you can see in the diagram. This is the plasma membrane. There is a bilipid layer and the protein layer is single. Transport across the plasma membrane. Membranes act as a physical barriers between the organelles of a cell and cytoplasm at its surrounding environment। मेम्ब्रेन क्या है, एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बस फिजिकल बैरियर है, और इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मीन्स जो उसको पास नहीं होने देती, जो सबस्टेंस को अंदर नहीं आने देती। परमिएबल मीन्स बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू, मतलब किसी भी सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को अपने अंदर आने देती है। सेमी परमिएबल मीन्स मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट पैसेज। जो मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है सॉल्वेंट के लिए बट नॉट सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि अगर हम
चीनी को वाटर में, शुगर को वाटर में घोलते हैं तो वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो सोल्यूट है। और जब जो मिक्सचर बनेगा इसका वो क्या बनेगा, उसे बोलेंगे सोल्यूशन। तो वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सोल्यूट है, और जो सोल्यूशन बना उसको घोल के वो वो सोल्यूशन कहलाएगा। सेलेक्टिवली परमेबल का मीन्स होता है इट इफ मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, मतलब कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अंदर आने देती है, और मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट, तब इसे सेलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है। क्लियर। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये देखो, ये जस्ट लीव इट। ओके, सो in this video I will complete till now, and after that I will continue. Okay, thank you.